Hello viewers, this is Dr. Smita Pandey, and if you are watching this video, I presume you are interested in patent agent examination, and that is why you have opened this video to watch. Uh, I am a professor of law, and I have been practicing as a patent attorney and trademark attorney and copyright attorney for a few years. I am a registered patent agent and a registered trademark agent. So I heard the news that there is an opening of examination which is going to be conducted in May related to patent agent and trademark agent. Since I was from science background, when I started studying law, it was little difficult for me to understand the nuances of law. And I can also understand those who are from law, for them, science becomes difficult to understand. Since I have practiced and I have also taught, so I felt that this is the time where I can contribute to the knowledge base and I can make students understand this particular law related to patents. I also came to know that there are various coachings which are actually asking exorbitant price for this particular exams preparation. So I felt it is not right. If I know it, I should do it. So I've started this particular series where I would be talking about the patent agent examination, how to prepare it. Rather than how to prepare it, I will tell you, I will give you the clarity of the subject so that you get prepared easily for this exam. The exam has basic pattern of basically there are two subjective papers or the written papers. One of them is and the third one is viva. So one of the subjective papers or rather written paper is multiple choice questions or objective questions, fill in the blanks, this kind of question paper pattern. And the second one is drafting of patents and it is more of a technical aspect. So the first part, which is the objective part, is actually mostly law. So for law, if I can say, so you have to study the Bare Act majorly. So the Bare Act as well as the rules. So you have to understand them, learn them, and you have to connect them. So that is the first part. Second is the drafting part. So I will teach you how to draft patent filing, but that will be the method how to do it. The other aspect of that particular paper is that you have to because you the requirement is the technical background, so you have to know about your background so that you are able to understand the invention for which you will be doing the drafting. So the pattern I will teach, but the technical aspect you have to learn on your own. So by the time we are going through the laws and we are going through the drafting process, please try to strong have a strong hold on your subject. So the subject knowledge will be good for you, because if you are from like science and you are from chemistry there, then you have to understand the chemicals, the chemical formula, the equations, what will happen after this, what is this kind of invention, because they are going to give you the drafting of that. So there will be choices among the drafting and you have to choose according to your field. So my suggestion is, by the time we are learning law and the drafting and acts and the rules, you get a strong hold of your subject. Now India's education system has little flaw. So even though we have English as a subject, most of the schools teach English, but we lack somewhere in understanding sometimes the English, especially the law portion. So this particular series will be a bilingual teaching, so that those who are not knowing much of an English, like I'm not saying they don't understand. Only thing is that sometimes they are unable to grasp the topic.
तो मैं उनको मद्देनजर रखते हुए कोशिश करूंगी कि मैं इसको बाइलिंगुअल बनाऊं, ताकि आपको समझ में आए। एक बार समझ में आती है, क्लैरिटी आ जाती है, तो हम उसको कर पाते हैं। सो दिस विल बी अ बाइलिंगुअल सीरीज for you all to understand in a mode where you are able to produce it in the paper. जब जब मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ तो आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ में उसको याद करते जाइए, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप कर पाएंगे इसको। उसके अलावा मैंने ट्रेडमार्क एजेंट के लिए भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। जिन्होंने दोनों भरा है आप उसको भी ज़रूर देखिए, और ये सीरीज में चलाती रहूं, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन दीजिए। आप कमेंट्स कीजिए, कुछ आपको चेंजेस चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी अपने वीडियोस में। इसके अलावा आप चाहे तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इजीली पता चल सके कि नेक्स्ट वीडियो कब आया है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एवरीडे आपको वीडियोस दिखाती रहूं, उनको बताती रहूं कि क्या करना है उसमें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि अभी हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम लोग उसको समझ लें अच्छे से। Let me check where is my edge. Yes. सो जो एक्ट है इसमें कई चैप्टर्स हैं, तो हमें ये सारे चैप्टर्स को समझना है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट करने के लिए पहला चैप्टर कर रही हूँ, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिस फर्स्ट चैप्टर, ये विच इज़ द प्रिलिमिनरी चैप्टर। सो ये प्रिलिमिनरी चैप्टर में दो सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 1 और एक है सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 जो है वो बहुत सिंपल है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है। दैट मीन्स के इसको क्या कहेंगे, इसको द पेटेंट्स एक्ट कहेंगे 1970। इसको कब ये फोर्स में आया है, तो 1970 कह रहे हैं, बट ये 1972 में आया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, इसलिए इसको इसका जो लॉज है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और इसको अगर चेंजेस करने भी होंगे तो ऑफिशियल गैजेट में इसको अनाउंस करेंगे। The second section becomes important, which is actually definitions and interpretation. अब definitions और interpretation क्यों डालते हैं, किसी भी एक्ट में आपको मोस्टली सेकंड जो सेक्शन होते हैं वो definitions होते हैं। वो definition उनके मीनिंग कहीं और हो सकते हैं, कुछ और होंगे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट इनके डेफिनेशंस यही होंगे जो यहाँ मेंशन्ड है, पहली बात। दूसरी बात, आप इंटरप्रेट इसको किसी तरह से नहीं करेंगे अनटिल अनलेस उसने ये बताया है, तो वो आपको यहाँ पर देखना होता है। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि मीन्स मतलब इन्होंने एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स में जो इसकी मीनिंग है उसके बाहर आप नहीं जाएंगे, दैट इज द मीनिंग विच यू हैव टू गिव। उसके अलावा अगर इंक्लूड्स कह रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो उसका बेसिक मीनिंग है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा जो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं ये भी इसमें मीनिंग में आएगा। So this is what the definition part says. So let's look at all the definitions one by one. पहला है एपिलेट बोर्ड। देखिए अभी रिसेंटली 2021 में ऑफिशियल गैजेट्स में ये कहा गया, इनफैक्ट पार्लियामेंट में इस बार बात हुई है कि एपिलेट बोर्ड्स को अब वो हटा रहे हैं, हटा दिया है। ट्रेडमार्क के लिए तो उन्होंने फॉर श्योर हटा दिया है, पेटेंट्स के लिए क्लैरिटी अभी नहीं आई है। तो अब एपिलेट बोर्ड नहीं रह के अब वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही केस अगर आपको चाहिए तो वो अपील तो आईपीएबी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एपिलेट बोर्ड, वो अब शायद यहाँ पर एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट क्योंकि ये यहाँ मेंशन्ड है 70 में, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो दिस इज दैट एपिलेट बोर्ड। देन द सेकेंड टर्म इज असाइनी। देखिए असाइनी के साथ में इन्होंने इंक्लूड वर्ड यूज किया है, यानी कि असाइनी तो असाइनी है ही है, उसके अलावा कोई और भी असाइनी हो सकता है। कौन, अगर किसी असाइनी ने किसी और को असाइनी बनाया है, ठीक है, उसके अलावा ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके किन के, जो डिसीज्ड असाइनी है उनके,
उनको हम लोग यहाँ पे कहेंगे। या फिर कोई भी ऐसा बंदा जिसको कि असाइनी ने या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया है उस आदमी का, या असाइनी बनाया, उन सब को हम असाइनी मानेंगे। ये देखिए एबीए जो है ये बाद में ऐड हुआ है। वो कहता है बुडापेस्ट ट्रीटी। व्हाट इज बुडापेस्ट ट्रीटी? एक्चुअली एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है जिसमें कि इंडिया भी सिग्नेटरी रहा है, तो इंडिया ने उसको रेटिफाई किया है 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पर इस ट्रीटी में ये बात हुई है कि देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, अगर वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग है तो हमको उनको एक पर्टिकुलर एरिया जगह पे, एक सपोजिंग एक लाइब्रेरी जैसी जगह पे उसको हमें सबमिट करना पड़ेगा कि हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उसको के ऊपर हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, उस पर हम कुछ केमिकल वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बुडापेस्ट ट्रीटी हुई है। और ये कहाँ हुई थी? 28th डे ऑफ अप्रैल 1977 में। क्वेश्चन आने की ऑब्जेक्टिव में संभावना है, ठीक है। यहाँ अगेन ये भी अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जब आप पेटेंट के बारे में पढ़ते हैं कि किसको पेटेंट किया जा सकता है, उसके 3 फैक्टर है। वन ऑफ द फैक्टर्स इज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि या तो वो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर वो ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो है एक ही कंट्रोलर है पेटेंट के लिए, डिजाइन के लिए और ट्रेडमार्क के लिए। उसको जब कंट्रोलर वर्ड समझते हो तो उसका मतलब ये होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। देन देयर इज कन्वेंशन एप्लीकेशन। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कई ट्रीटीज की हुई हैं, तो हमारा जो बाकी कंट्रीज जो है, जैसे पीसीटी एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें सारे जिन्होंने साइन किए हैं, जिस कंट्रीज ने, उस कंट्री के एप्लीकेशन जो है पीसीटी के अंदर में अगर आते हैं तो वो कन्वेंशन कंट्री होती है। मतलब हमने कन्वेंशन के थ्रू उनके साथ अपनी साइन की है ट्रीटी। तो उसमें ये कंट्री यानी ये मीन्स लिखा है, तो दैट मीन्स कि वो कंट्री तो होगा ही, या फिर जो मेंबर कंट्री है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का। फॉर एग्जांपल कोई मल्टीलैटरल ट्रीटी हुई है तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, या फिर यूनियन ऑफ कंट्रीज है, या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उनको हम लोग जब सेक्शन 133 पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा कि वहां पे इसको कनेक्ट करना है। उनको हमने रिकॉग्नाइज किया एज अ कन्वेंशन कंट्री। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एज यूजुअल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जानते हैं वही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं, और जो जिनके ऊपर में हायरार्की में हाई कोर्ट्स होते हैं वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर बात करते हैं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर में जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना गया है वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव लाइसेंस, यानी यहाँ पे टर्म है एक्सक्लूसिव, तो यानी मैंने किसी एक ही को ये लाइसेंस दिया है उस पेटेंट को यूज करने के लिए। और यहाँ अगर एक्सक्लूसिव टर्म यूज हो गया है तो इसका मतलब है कि मैं अगर इन्वेंटर हूँ या पेटेंट ओनर हूँ तो मैं भी उससे एक्सक्लूडेड हूँ यूज करने से। यानी जिसको मैंने सिर्फ लाइसेंस दिया है, ये लाइसेंस जो मैंने किसी को दिया है, तो वही इसका एक्सक्लूसिव लाइसेंस होल्डर होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। देखिए ये एक्ट जो है ना, ये ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है। ऑफलाइन ये कुछ इस तरह का रहता है ये बेयर एक्ट, तो ये आप प्लीज ले लीजिएगा, बिकॉज अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत है ये ले लीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है जो कि लेजिस्लेचर्स को रखते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आईपी इंडिया के भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अलावा जनरली भी आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। देखिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अंदाज से आप यही समझिए जिनको हम लोग जिसमें गवर्नमेंट का शेयर हो गया, ऐसी अंडरटेकिंग। यानी गवर्नमेंट ने उसको या तो गवर्नमेंट का मेजर शेयर है या गवर्नमेंट ही उस पर एक्ट कर रही है, या फिर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो किसी भी लेवल पे वो रहे, चाहे सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट रहे, अगर उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करिए तो गवर्नमेंट की वो अंडरटेकिंग हो जाती है, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट में भी जैसे डेफिनेशन देखिए ये 56 दिया है, आज के डेट में कंपनीज एक्ट 2013 होता है, तो ये चेंजेस इन्होंने यहाँ नहीं किया है। बट आपको समझ में आता है कि आपको ये चेंजेस के साथ भी वही ये करेंगे।
हाई कोर्ट अगेन, हाई कोर्ट आप जानते हैं कि जो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स रहते हैं उनको या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए भी जो रहते हैं हाई कोर्ट्स, उनको ही हाई कोर्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। इंटरनेशनल एप्लीकेशन एक्चुअली यहाँ पहले तो इंडिविजुअल हम चाहते थे जिस जिस कंट्री में वहाँ अप्लाई करते थे, बट अभी जो है वो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी या फिर पीसीटी जिसको कहते हैं वो अप्लाई हो गया। तो मैं खुद से भी चाहूँ तो मैं एक बार में जितनी कंट्रीज में मैं चाहूँ अप्लाई कर सकता हूँ थ्रू दिस ट्रीटी। और वहाँ पर जब इंटरनेशनल बाहर से किसी ने चूज किया है मेरे कंट्री को अप्लाई करने के लिए पेटेंट, तो वो उसका इंटरनेशनल एप्लीकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेंशन। कोई भी नया प्रोसेस है या फिर प्रोडक्ट है या फिर एक प्रोसेस में इन्वेंटिव स्टेप है, एक पर्टिकुलर स्टेप इन्वेंटिव स्टेप है, तो वो जो है इन्वेंशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज इन्वेंटिव स्टेप। तो इन्वेंटिव स्टेप जो है एक तरह से आप समझिए जैसे जैसे एक मोबाइल है। पहले जैसे मोबाइल आता था तो वो सिर्फ फ्रंट कैमरा होता था, उसको ही वो कैप्चर करता था। आज के डेट में वो वही कैमरा जो है रिवर्स भी होता है और 360 डिग्रीज भी लेता है, पैनारोमा भी लेता है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो है वो इन्वेंटिव स्टेप हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर कैमरा। उसके अलावा भी कई कई बार ऐसे होते हैं कोई चीज़ें जिसमें कोई मेडिसिन है, वो मेडिसिन की कोई एक काम करता है और उस मेडिसिन में कुछ चेंजेस करके एक पर्टिकुलर ऐड करके केमिकल मैंने उसको उसके लिए कुछ और यूसेज भी निकाल लिया है, तो वो इन्वेंटिव स्टेप हो जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही जो लॉयर्स होते हैं, वो किसी उनको जो नॉट लॉयर्स सॉरी, जो बाय लॉ जिनको जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के मरने के बाद उसके स्टेट को। New invention means any invention or technology which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, या जैसे आपने कहीं पब्लिकेशन करा दिया अपने इन्वेंशन को तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया, या फिर आपने कहीं पे प्रेजेंट कर दिया है उस इन्वेंशन को तो वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो वो न्यू इन्वेंशन नहीं रह जाता। वेर द रिक्वायरमेंट इज फॉर द पेटेंट इट हैज टू बी न्यू इन्वेंशन। उसमें भी कुछ चेंजेस हैं जो भी हम लोग पढ़ेंगे। देन देयर इज ऑपोजिशन बोर्ड, जो कि आप अगर अपोज किया गया है, किसी ने अपोज किया है तो उसको भी हियर करेंगे, आपको भी हियर करेंगे, तो उनके लिए एक बोर्ड बनी रहती है जिसको कि ऑपोजिशन बोर्ड बोलते हैं। पेटेंट इज व्हाट यू आर गेटिंग फॉर एन इन्वेंशन, ग्रांट हो चुका है तो पेटेंट कहलाता है। पेटेंट एजेंट जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो एजेंट होता है जो कि पेटेंट की फाइलिंग करता है। पेटेंटेड आर्टिकल एंड पेटेंटेड प्रोसेस जो है वो आर्टिकल और प्रोसेस वो है जिसको जो कि जो कि पेटेंटेड है, यानी मैंने बताया या तो प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट पेटेंट होता है, तो यही होता है वो। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक चैप्टर में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है। इसको थोड़े डिटेल में हम लोग थोड़े टाइम बाद पढ़ने वाले हैं। बट जैसे मैंने बताया कि एक ये ट्रीटी है बिटवीन मेनी कंट्रीज जिन्होंने डिसाइड किया कि हर एक कोई को अलाउ है उस कंट्री के दूसरे कंट्री को पेटेंट को फाइल करने के लिए। पेटेंटी जो है वो जिसका नाम रजिस्टर में चढ़ता है एज अ पेटेंटी, यानी उसने जिसने जो कि ग्रांटी और प्रोप्राइटर ऑफ द पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट ऑफ एडिशन हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग सेक्शन 54 पढ़ेंगे तो मैं उस वक्त आपको डिटेल में समझा दूंगी। बट यहाँ पे उसको डेफिनेशन दिया गया है यही कह के कि जैसा कि सेक्शन 54 में है वही ये पेटेंट ऑफ एडिशन है। पेटेंट ऑफिस जो है वो जनरली जो जोन में आप फॉल करते हैं वहाँ का वो पेटेंट ऑफिस हो जाता है। पर्सन में अगर पर्सन कहें तो यहाँ पे जब ये टर्म यूज हुआ है इंक्लूड्स, दैट मीन्स कि जो पर्सन नॉर्मली भी जिसको डेफिनेशन है उसके अलावा इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज वेल। देन देयर इज पर्सन इंटरेस्टेड,
includes a person engaged in or in promoting research in the same field as that to which the invention relates. तो ये जैसे मान लीजिए कि जैसे कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, तो उसमें मैंने फाइल किया कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए, और मैंने उस किसी पर्टिकुलर कैंसर का दवा के लिए मैंने कंपल्सरी लाइसेंस फाइल किया है, तो मैं पर्सन इंटरेस्टेड हो जाता हूँ क्योंकि मैं भी दवा बनाता हूँ। तो इसके लिए वो पर्सन इंटरेस्टेड कहा कि वो उसी काम में है, उसी रिसर्च एरिया में है जिससे इन्वेंशन रिलेटेड है। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस मींस एनी न्यू एंटिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर इन्वेंटिव स्टेप। तो ये इस पर भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड जो है कैसे बताया गया हो, कोर्ट के जो रूल्स हों उसको, जो प्रिस्क्राइब किए गए हों उसी को फॉलो करना है, उसी के रिलेशन में प्रिस्क्राइब कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि एपिलेट बोर्ड जो है उसकी क्लैरिटी अभी नहीं है, पर एपिलेट बोर्ड अगर है तो उसमें भी जो प्रिस्क्राइब की गई है प्रोसीडिंग्स उसको कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी भी कोर्ट्स होंगे उनमें भी जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है वो आप उसको मानेंगे। prescribed manner again same as जो प्रिस्क्राइब दिया है हाई कोर्ट्स में या फिर एपिलेट बोर्ड में या अदर कोर्ट्स में। इसके अलावा इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है इंक्लूड्स, दैट मीन्स कि जो प्रिस्क्राइब्ड फी है वो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आता है। प्रायोरिटी डेट जो है वो, जैसे मैंने पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी के बारे में आपसे बात करी है, तो उसमें एक कंट्री में इन्वेंशन है और उसने यहाँ पे भी फाइल किया है, तो उसका वो डेट जो जहाँ पे उसने पहली बार फाइल किया था वो डेट उसको मिल जाता है एज अ प्रायोरिटी। उसके अलावा सपोज कीजिए मैंने प्रोविजनल फाइलिंग की है और किसी और ने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग की है, और जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसने दिया है वो मुझसे बाद में दिया है, और मैंने अभी प्रोविजनली दिया है, मेरा अभी कंप्लीट देना बाकी है, यानी 1 ईयर की टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है। तो इवन दो सेम इन्वेंशन है, तो उसने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे दिया पर मैंने अभी नहीं दिया है, पर मुझे वो प्रायोरिटी डेट मिलती है बिकॉज मैंने पहले फाइलिंग की है इवन दो मैंने प्रोविजनल किया है। रजिस्टर इज द रजिस्टर वेर यू डू द रजिस्ट्रेशन का सारा मतलब जिनको पेटेंट मिला है उनका वो रजिस्टर होता है। ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर डज नॉट इंक्लूड ईदर द फर्स्ट इंपोर्टर ऑफ एन इन्वेंशन इनटू इंडिया और अ पर्सन टू हुम एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। दैट मीन्स इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली यही कहा है कि कौन नहीं है, तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का नाम डालना पड़ता है फाइल में आपके इसमें ड्राफ्टिंग में। तो यहाँ पर उनको नहीं आप कह सकते हैं ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जिसने फर्स्ट टाइम इंपोर्ट किया हो इंडिया में या फिर कम्युनिकेट किया हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है। कंट्रोलर जो है shall be construed as including a reference to any officer discharging the functions of controller in the pursuance of section 74(3) जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑफिस जो है ब्रांच ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस भी ब्रांच ऑफिस कहलाता है। सो वी विल स्टॉप हियर बिकॉज हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है विच वॉज रिक्वायर्ड, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू।